हम पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 3, 4, 5 इंग्लिश किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Calamities coming upon Judah, different states of the righteous and the wicked, oppression of the rulers, punishment of the woman for pride. First verse से पढ़ेंगे। For behold, the Lord of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread and the whole stay of water, the mighty man and the man of war, the judge and the prophet, and the prudent and the ancient, the captain of 50, and the honorable man, and the counselor, and the cunning artificer, and the eloquent orator. And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbor. The child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honorable. When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand, in that day shall he swear, saying, I will not be an healer, for in my house is neither bread nor clothing. Make me not a ruler of the people. For Jerusalem is ruined and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord, to provoke the eyes of his glory. The shew of their countenance doeth witness against them, and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul, for they have rewarded evil unto themselves. Say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked! It shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cast thee to err, and to destroy the way of thy paths. The Lord standeth up to plead, and standeth to judge the people. The Lord will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof, for ye have eaten up the vineyard, the spoil of the poor is in your houses. What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? Saith the Lord God of hosts. Moreover, the Lord saith, because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with your feet. Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their secret parts. Oh my God. 18 verse. In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their calls, and their round tires like the moon, the chains and the bracelets and the mufflers, the bonnets and the ornaments of the legs, and the head bands, and the tablets of the and the earrings, the rings and nose jewels, the changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins, the glasses, and the fine linen, and the hoods, and the veils. And it shall come to pass that instead of sweet smell there shall be stink, and instead of a girdle, a rent, and instead of well set hair, baldness, and instead of a stomach, or a girdling of sackcloth, and burning instead of beauty.
Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war, and her gates shall lament and mourn, and she being desolate shall sit upon the ground. Oh Jesus. Hallelujah. Chapter 4. Thank you Jesus. Thank you Jesus. जो व्यभिचार के आत्माओं का काम करते हैं दुष्ट आत्मा के जगत के अंदर से, ये उनका वर्णन है. ओके, ये उनका वर्णन, ये मेरे प्रकाशन में मुझे परमेश्वर ने दिया. वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमको व्यभिचार में गिराना चाहते हैं. ओके, जो हमको व्यभिचार का इन्फ्लुएंस, प्रभाव हमको देते हैं. उनके पास क्या क्या चीज़ें होती है, उनके यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं. ओके, और ये लोग जो ऐसा इस्तेमाल करते हैं सब कुछ, वो फिर बाद में पश्चातापी हृदय प्राप्त करने वाले हैं. परमेश्वर कहता है मैं उनको पश्चातापी हृदय के अंदर जब लेकर आऊँगा तो उनकी अवस्थाएं ऐसी हो जाएगी कि वो चीज़ें उनके काम की नहीं रहेगी. वो चीज़ें के बदले में दूसरा कुछ उनके ऊपर मैं पहनाने जा रहा हूँ. मतलब पश्चातापी हृदय का पहरावा जो रहता है, वो रोते हैं, प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, घुटनों के बल आते हैं. ये सब चीज़ें वो उपवास करेंगे और मन को दुखी करेंगे, हर पाप को देखकर मन दुखी करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, उससे छुटकारे मांगेंगे. उस प्रकार की अवस्था मनुष्य जातियों में परमेश्वर निर्माण करेगा. ओके, तो व्यभिचार के आत्माओं से जो पीड़ा देते हैं, उन लोगों के पास कौन सी चीज़ें होती है, उनका अंत परमेश्वर उनको पावरलेस करने जा रहा है और उनको, वो इंसानों को परमेश्वर पश्चातापी रास्ते से मोड़ कर लाने जा रहा है. आमीन. तो इसके लिए ये अध्याय को आप नोट डाउन करो. जब भी आप परेशान होंगे व्यभिचार के आत्माओं से, तो आप ये अध्याय के इन वचनों को क्लेम करो, और ये ताकतवर है. देखो 25 और 26 ओपनली कहता है उनके पास जो भी पावरफुल है वो सब कुछ घट जाएगा. ओके, लिखा हुआ है वहाँ पर. आइज़ाया 4 चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्स से इंट्रोडक्शन. डिस्ट्रेस ऑफ द टाइम्स, succeeding blessings and security of Christ's kingdom. First verse से पढ़ेंगे. And in that day 7 women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name, to take away our reproach. In that day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. And it shall come to pass that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof, by the spirit of judgment and by the spirit of burning. And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion and upon her assemblies a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night. For upon all the glory shall be a defense, and there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain. Chapter 5. First वर्ड से पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. गॉड accuses his severe judgments. His judgments upon covetousness, lasciviousness, and impiety. First verse से. Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved hath a vineyard in a very fruitful hill, and he fenced it and gathered out
the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. What could have been done more to my vineyard that I have not done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, hallelujah, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Oh my God, hallelujah. Okay, sixth version. And I will lay it waste. It shall not be pruned or digged, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant. And he looked for judgment, but behold, oppression; for righteousness, but behold, a cry. Woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place that they may be placed alone in the midst of the earth. In mine ear, said the Lord of hosts, of a truth, many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitant. Yea, 10 acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. And the harp and the viol, the tabret and pipe and wine are in their feasts, but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of his hands. Okay. Therefore, my people are gone into captivity, because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore, hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, he that rejoiceth shall descend into it. And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled. But the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness. Hallelujah. Then shall the lambs feed after their manner, and the waste places of the fat ones shall strangers eat. Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a carved rope, that say, let him make speed and hasten his work, that we may see it, and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know it. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink, which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him. Therefore, as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff,
So their roots shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Therefore is the anger of the Lord kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them, and hath smitten them, and the hills did tremble, and their carcasses were torn in the midst of the streets. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hears unto them from the end of the earth. And behold, they shall come with speed swiftly. None shall be weary nor stumble among them. None shall slumber nor sleep. Neither shall the girdle of their loins be loosed, nor the latchet of their shoes be broken, whose arrows are sharp, and all their bows bent. Their horses' hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind. Their roaring shall be like a lion. They shall roar like young lions. Yea, they shall roar and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none shall deliver it. And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea. And if one look unto the land, behold, darkness and sorrow, and the light as is darkened in the heavens thereof. यशायाह की भविष्यवाणी 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ेंगे। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यरूशलेम में दुर्व्यवस्था, 3 अध्याय पहले वचन से। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अंत का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को, और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। हालेलुया। मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा, और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा न होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्याय नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरोध है, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। ओ रिबांत अश्कर बखासे के 3 अरबा अखासे लाभ ओ कासियांतु खम्बरा हस्सा। 9 वचन से आगे, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का न्याय करना। 13 वचन से आगे, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है।
यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हकीमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खाल डाली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यरूशलेम के स्त्रियों को चेतावनी, 16 वचन से आगे। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरूओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनका तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरूओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों की सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करघनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। हालेलुया। और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। ये व्यभिचार के आत्मा का लक्षण कैसे प्रभाव करता है, लोग कैसे काम करते हैं, ये सारा इसके अंदर डिटेल्स दिया गया है। व्यभिचार का आत्मा का यूज अगर कोई कर रहा है किसी के खिलाफ, तो उसके पास ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये सीक्रेट्स है उनके पावर्स रखने के। इवल स्पिरिट्स को उनके गैंग बनाकर वो अपने साथ लेकर घूमने का, ये उनके पास कारण होता है। उनके पास एक स्पेसिफिक गंध होता है, घुंघरू होते हैं, जालियाँ होती है, चंद्रहार, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो उनको पश्चातापी हृदय देगा। आमीन। और वो सब कुछ चेंज कर देगा, पलटा देगा। जो बहुत चकाचौंध जी रहे हैं, ये सब शक्तियों को अपने साथ रखे हुए, वो सब मेंटेन कर रहे हैं अपने लाइफ को, इन शक्तियों के चीज़ों के साथ अपने लाइफ को बराबरी में रख रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कहता है उस वो जो रखे हैं, उस रखी हुई चीज़ों का बदलाहट इस प्रकार से होगा कि वो पश्चातापी हृदय में शुरुआत हो जाएंगे और उसके उनके जो प्रिंसिपलिटी है, प्रधानता है, जो प्रमुख शक्तियां हैं, वो उनको छोड़ कर जाएगी, वो घात कर दी जाएगी। ओके, उनको जो पावर सोर्सेस है वो जगह तोड़ दिए जाएंगे। ओके, और उनके लिए इतना मुश्किल समय रहेगा कि वो परमेश्वर के अलावा दूसरा और कुछ नहीं सोचेंगे। वो अपने एक अकेले बैठकर परमेश्वर के संगति में समय बिताएंगे। ओके, तो इस प्रकार का उनका लाइफ परमेश्वर चेंज कर देगा। आपको आशा नहीं खोना है। परमेश्वर को इन वचनों के साथ आपने व्यभिचार के इन्फ्लुएंस को, व्यभिचार के काम जो आपके ऊपर थोपे जाते हैं, उनके ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना है जो यहाँ वर्णन कर रखी है। ओके, और उसके बदले में परमेश्वर से उनको पश्चातापी हृदय मांगना है। उनके जो मेन पावर हाउसेस है उसको परमेश्वर को कहना है गिरा देने के लिए और बांध देने के लिए, उसका पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, ताकि वो लोग पश्चाताप में बैठकर परमेश्वर के संगति में उतरकर परमेश्वर से पवित्रता को धारण कर पाए। आमीन। तो ये उनके बारे में बहुत अच्छा वर्णन, सीक्रेट ऑफ उनका लाइफ बताया है। ठीक है, वो अपने तन को कैसे उघाड़ते हैं, वो कैसे ठुमुक ठुमुक चलते हैं, उनके हर एक हलचल में उनकी शक्तियों के गैंग मौजूद होते हैं। हर एक हलचल में उनके चलने के फुटस्टेप्स में भी शक्तियाँ रहती है, उनके देखने में शक्तियाँ रहती है। ओके, उनका अगर फ्रेग्रेंस भी उनके कुछ बदन से कुछ गंध है तो वो भी शक्तियों से कनेक्टेड रहती है। ओके, जो ये सब चीज़ें हैं
आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ईवल किंगडम के लोग जो है साधारण नहीं रहते हैं, वो पूरे हथियार बंद लोग रहते हैं, पूरी तरह से अपने अंदर हथियार को ले लिए होते। आपने देखा होगा कैसे जो अन्य जातियों के लोग जो है किस प्रकार से अंगूठियाँ पहनते हैं, किस प्रकार के गले में क्या क्या ऑर्नामेंट्स रहते हैं, उनके कानों में क्या क्या रहता है, नथुनों में क्या रहता है, पैरों में क्या क्या रहता है, उनके बदन के ऊपर खुशबू कैसे रहती है, उनके कपड़ों में कैसे छातियों को कैसे झलकाया जाता है, पीठ कमर को कैसे खोल के दिखाया जाता है, कैसे वो अपने कोई भी बदन का हिस्सा किस प्रकार से लोगों के आंखों में लेकर आते हैं। ये सब कुछ के ऊपर उनके पावर के मैनेजमेंट्स है। ओके, वो सारी चीज़ें जो रुमाल में कुछ बांध के रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, ओके, अपने बदन के साथ कनेक्टेड रखेंगे, ये सब आपको पता भी नहीं है, उन्होंने ये सब करके फिर आपके सामने वो आते हैं। ओके, फुल्ली वेपन को, वो हथियार को बांध कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक वेपन्स को, एक एक हथियार को वो आपके सामने युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। वो युद्ध तो करते नहीं है आपके साथ, वो आपको गिराने में ही कामयाब होते जाते हैं। ठीक है, तो उनकी कामयाबी का कारण क्या है? क्योंकि हम हथियार को नहीं पहचानते हैं, इसकी वजह से उनके हथियार से वाकिफ होने के लिए बोला है पौलुस ने। हम वो हथियार को वाकिफ नहीं है, इसकी वजह से हम ईवल किंगडम का हर एक चीज़ को आसानी से लेते। कहीं पर कुछ अच्छा कुछ दिखाई दिया, जाके खरीद कर लेकर आते हैं। हमको नहीं पता है ये सारी चीज़ों के पीछे ईवल किंगडम का कैसा रास्ता खोला जाता है। आमीन। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो यीशु के लहू से धोकर कनेक्ट कीजिए। कोई इंसान आपका ईवल किंगडम में से कनेक्शन में है, उसको देखने में वो सिंपल इंसान दिखेगा, बहुत साधारण दिखेगा, कुछ नहीं लगेगा आपको उसका, लेकिन आप उसके अंगूठियों को देख सकते कौन सी पहनी है, आप उसके गले में क्या पहना है वो देख सकते, उसने माथे पर क्या लगाया वो देख सकते, उसने बालों में क्या गूंथा है वो देख सकते, उसके बदन पर खुशबू कौन सी है वो आप देख सकते, उसके पैरों में क्या है, चप्पल में क्या है, ओके, सब कुछ को आप देख सकते। इतना ही नहीं, आपके घर में जो लोग आते उनके पैरों के तलवों को भी वो गंदा ऐसा कुछ रख के फिर आपके घर में प्रवेश करते हैं। ओके, और वो छाप वो अब हमारे घर के अंदर आने के वक्त में छाप डाल के जाते हैं वो। ओके, तो आपको उनके आने जाने के बाद में हमेशा क्लीन कर देना है वो जगहों को, और अगर आप नहीं क्लीन कर सकते तो यीशु के लहू से पहले ही सब कुछ यीशु के लहू से डिस्ट्रॉय कर देना है, कि वो जब आपके ज़मीन को छुएंगे तो आपकी प्रभुता उनके ऊपर राज्य करेगी, ना कि उनके लेकर आए हुए शक्तियाँ। ओके, आपके मेन डोर एंट्रीज, आपकी प्रभुता उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, ना कि उनकी प्रभुता आपके ऊपर। ओके, आपके विंडोज, बालकनीज, हमेशा आप ध्यान रखिए ये सारे एंट्री पॉइंट्स है, इसमें से आपकी प्रभुता ऊंची होनी चाहिए, ना कि उनकी प्रभुता आपको गिराने में कामयाब हो। ओके, ये बात हमेशा गौर कीजिए इस बात को। ठीक है, 4 अध्याय पढ़ेंगे। उस समय, पहले वचन से, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए हमारी नामधराई दूर कर। यरूशलेम का सुंदर भविष्य, 2 वचन से आगे। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन के स्त्रियों के मल को धो चुकेगी और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगी। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। आमीन।
देखो, पश्चाताप हृदय परमेश्वर चाहता है। ओके, हमेशा याद रखो, आपके लिए परमेश्वर बादल होकर खड़ा रहेगा, धधकती आग होकर उजियाला देगा। बहुत कुछ आपके लिए वो प्रोटेक्शन रिलीज करता है, वो रिलीज करता है। हमको पहला स्टेप जो है रिपेंट करना और फिर परमेश्वर को मांगना कि अब तू हम में समा जा, अब तू हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर। जो कोई भी जो कुछ भी करेगा वो परमेश्वर का व्यवस्था पाएगा। ओके, वो परमेश्वर का व्यवस्था ही है जो आपको वैसा फेवर लोगों से मिलेगा, आपके इर्द गिर्द में से मिलेगा। ये आप नहीं जानते हैं किसको परमेश्वर क्या बोलेगा, कैसे प्रकार से आपके लाइफ को वो संभालने के लिए। ओके, कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा किया था एलिया को जाके खिलाने के लिए। ओके, तो आप नहीं जानेंगे कौन से गदही के मुंह से बलाक के लिए बलाम के लिए बोला गया था कि तू आगे नहीं जाना है। ओके, तो आगे नहीं जाना है ये कहने के लिए गदही के मुंह से बुलवाना पड़ा कि स्वर्गदूत तुझे मारने के लिए खड़ा है। ठीक है, तो परमेश्वर किसको यूज करेगा आपके ओर से आप नहीं बता सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई अनबिलीवर्स आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा ये क्यों मुझे हेल्प कर रहा है, ये क्यों मुझे फेवर कर रहा है। ओके, आपको माइंड करना नहीं है, ये समय आपको प्रार्थना याद करना है कि आपने क्या मांगा था। तो परमेश्वर वो रास्ता आपको देता है। वो जन कोई भी हो सकता है, चीज़ कोई भी हो सकती है, कहीं से भी वो कनेक्ट करके आपकी ज़रूरत पूरा करेगा वो। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे 5 अध्याय का दाख की बारी का गीत पहले वचन से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीलों पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा है ये वचन। परमेश्वर सब कुछ हमको करने के लिए कहता है, हम सब करते हैं, लेकिन जब फसल को देखने जाते हैं तो हमारे हाथ निकम्मी दाखें लगती है। ओके, आशा टूटने वाला ही अंत हमको दिखाई देता है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपने दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। तो इसका क्यों ऐसा था, क्यों हमको निकम्मा दाखे हाथ लगा? क्योंकि कांटे थे। ओके, जो हम नहीं देखे थे। हमने रिपेंट किया, हमने पश्चाताप किया, हमने प्रार्थना किया, हमने मांगा, हम गिड़गिड़ाए, हमने वचनों को क्लेम किया, हमने जो परमेश्वर ने चाहा था सब रास्ता चला, हाथ क्या लगा? निकम्मा दाख। ओके, तो इसका कारण क्या है? परमेश्वर बता रहा है, वहाँ पर कांटे वाले बाड़े को उखाड़ना रह गया था। ओके, कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा। देखो, आपकी फसल कौन खा जाता था? कांटे वाले बाड़े। आपने उखाड़े नहीं। मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, मैं अगला रिकॉर्डिंग आप सुनना, मैं इसमें मिक्सचर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये वाला सेंटेंस आप ध्यान रखो, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। देखो, आप प्रेयर करो, आप जितना जी चाहो रिपेंट करो, जितना जी चाहो उतना सब कुछ करो, लेकिन बाकी काम परमेश्वर ने आके क्या किया? देखो, उसने कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दिया। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अधिकार दिया है, उसने कहा सब कुछ के ऊपर यीशु में अधिकार है, तो आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करो और अधिकार को इस्तेमाल करो। तो क्यों परमेश्वर ने बोला? क्योंकि ये काम परमेश्वर किया करता था, वो कांटे वाले बाड़े निकालता था। अब ये काम हमारा है।
ओके, हमने उसको निकालना है। ये जो है आपकी फसल खा लेता है, फिर आपको पता चलता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना प्रभु 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 इतना मैंने मन लगाया प्रभु से, और मेरे हाथ क्या लगा, मेरी आशा टूट गई, मुझे निकम्मी दाखें मिली। ओके, तो आपकी दाखें तो आई थी माय डियर फ्रेंड, लेकिन वो चट कर गए। कौन? कांटे वाले बाड़े। ओके, जिसको आपने निकालना है यीशु मसीह के नाम में। ओके, और आगे देखिए क्या है, और उसकी दीवार, वो दीवार भी है जिसको आपने ढा देना है, नहीं तो वो आपको रौंद देता है, आपके फसल को रौंद देता है वो। ठीक है, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी। आपको कंप्लीट फिनिश एंड दे देना है उसको। नासरी यीशु मसीह के नाम में वो कभी दोबारा जन्मेगा नहीं, वो कभी दोबारा फूटेगा नहीं, कभी दोबारा उगेगा नहीं। हर प्रकार से यीशु नासरी के नाम में वो कंटीले पेड़, कंटीले बाड़े, हर एक दीवार जो मेरे खिलाफ मुझे रौंदने के लिए है, नासरी यीशु के नाम से मैं ढा देती हूँ, और वो बाड़े मैं उखाड़ देती हूँ नासरी यीशु के नाम में। आपको ये बोलना है। ओके, भस्म करने वाली आग। देखो फिर परमेश्वर ने देखो क्या किया, न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। तो आपके जमीन कंटीले पेड़ों के उगने के लिए मजबूत क्या बोलते हैं, रिबेलियस बनना चाहिए, रिबेलियस ढीठ बनना चाहिए। कंटीले पेड़ उसके अंदर उगेंगे ही नहीं, आपकी ढिठाई उसको दिखानी चाहिए। ओके, और फिर देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। उसको एटमॉस्फेयर जो है वो उसको क्लाइमेट जो है उसको ना मिले, यानी बुरी संगति के लोग, ये जो इविल किंगडम के, मैंने आपको 3 अध्याय के 16 वचन से आपने पढ़ा किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसे चीज़ें पहनकर, ऐसे चीज़ें अपने ऊपर वेपन्स बना के आपके सामने घूमते हैं, वो आपकी आंखों को देखने के लिए। ओके, आपके आवाज़ों में, आपके सोचों में वो आना चाहते, आपके सारे बातों में वो पूर्ण रूप से आपके सोल में वो इंटीमेट हो जाना चाहते। फिर ऐसा हो जाने के बाद में आपके ऊपर वो अटैक कर पाते हैं। ओके, तो ये क्लाइमेट है। तो परमेश्वर कहता है मैं ये क्लाइमेट भी होने नहीं दूंगा, ताकि वो कंटीले पेड़ नहीं उगे। इसके लिए वो क्लाइमेट भी आप नहीं लेना है अपने अंदर। आपके सोल में भी आपने इमोशनल पाप भी नहीं करना है। आपकी आंखों को, सेंसेस को, इमोशंस को यीशु के लहू से धो देना है। आपके स्मरण को यीशु के लहू से धो देना है, क्योंकि इविल किंगडम के लोग वेपन से लदे हुए लोग रहते हैं। ओके, आपके बॉस हो सकते हैं, रोज के रोज आपको उनका सामना करना है। आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपका उठना बैठना उनके साथ डेंजर जोन में आप चल रहे, वो हथियार बंद लोग हैं और आप निहत्थे हो, तो क्या फसल लाएंगे आप? ओके, आपकी फसलें हैं, लेकिन चट कर देने वाली बातें वो आपके जीवन में डालते हैं। ओके, आपको आपकी फसलें रौंदी जाएगी, ऐसी चीज़ें वो दीवार बनाकर आपकी लाइफ में रख देते हैं। ये सारा चीज़ वॉरफेयर है, ये आपने तोड़ना है, छाट देना है, उसको काट देना है, उखाड़ देना है, जला देना है। क्लाइमेट्स उसका अपने अंदर रुकने नहीं देना है, अपने प्राण में उसके कोई फसल खराब करने वाला क्लाइमेट आपके अंदर रुकने नहीं देना है। उसका क्लाइमेट सोल में से आता है। सोल को जैसा सेक दिया जाता है, ताकि सोल के अंदर जो कड़वाहट उन्होंने बोई होगी, जो चीज़ें उन्होंने बोई होगी, उसको अच्छी तरह से वो संभाल सके। इसके लिए आपको बैड फ्रेंड्स बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो आपके सोल को सेक दे रहे हैं। ओके, वो आपको झूठी तसल्ली दे रहे हैं, वो झूठा मीठापन दे रहे हैं, और यही कारण है फिर आपको समझ नहीं आता है सच कौन है और झूठ कौन है। क्योंकि प्रभु का प्रेम जो दिखाता है, वो प्रभु का प्रेम असली नहीं रहेगा, तो वो आपको सिर्फ आपके सोल कैच करने के लिए वो आपका सोल को सेक लगा रहा होता है। आप अगर उस सेक को लेकर गर्मी महसूस करेंगे, तसल्ली महसूस करेंगे, तो वो उठ जाने वाला है, और उसके बाद का समय आपका खतरनाक निकम्मा समय आपके हाथ लगने वाला है। खतरनाक निकम्मा समय। ओके, आप कुछ कर नहीं पाएंगे वो समय का।
आपको ध्यान रखना है, आपके इवल किंगडम का अफेयर्स ध्यान रखिए। ओके, आप जो बिजनेस में है, जो कामकाजों में है, जो जहाँ कहीं पर भी है। दानियल भी इवलों के हाथों में था। ओके, जो उसको नहीं चाहिए वो सब कुछ उससे करवाने के लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की महिमा, आपकी महिमा आपके जीवन में से दिखना चाहिए। ओके, वो देखो, दानियल का अंग काट दिया गया था, फिर भी दानियल कुछ नहीं कर पाया, जबकि वो यहूदी था, जबकि वो परमेश्वर का था। वो आप वैसे ही है, आप परमेश्वर के हैं। आपका भी कुछ भी हिस्सा, कैसा भी कुछ भी शैतानी जगत में कैसे भी आपको उघाड़ा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। लेकिन जब खाने पीने का समय आया, जब परमेश्वर का वचन टूटने का समय आया, तब दानियल ने आवाज निकाला, ए माय डियर, कम ऑन, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं खाना है मुझे। ओके, ये मूर्तियों के सामने नहीं झुकना है मुझे। मरे तो मरे, जिए तो जिए, मेरा कुछ नुकसान हो तो हो, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी कोई बातें हो ना हो, लेकिन अगर वचन का सामना होने लगेगा तो वचन को पहला स्थान दीजिए और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ओके, कुछ भी चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ वचन टूटने का समय आएगा तो आपने ध्यान रखना है, वो निकम्मा कर देगा आपको। वचन तोड़िए मत, वचन को मजबूत बनाए रखिए, बाकी कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दानियल यहूदी था, फिर भी उसका अंग काट दिया गया। वो यहूदी था, फिर भी वो बेबीलोन के बंधुआई में चला गया। वो यहूदी था, फिर भी उसको गुलामी करने के लिए वहां पर ले लिया गया। वो यहूदी होते हुए भी, या यहूदी यानी परमेश्वर का जन होते हुए भी, उसके बारे में नुकसान की बातें उसको लेनी पड़ी अपने अंदर। यूसुफ यहूदी था, उसको नुकसान की बातें अपने ऊपर लेनी पड़ी। ओके, उसके ऊपर फिरौन ने इल्जाम लगा दिए। ओके, उसको बंदीगृह में डाला गया, उसके भाइयों ने नफरत किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। परमेश्वर उसका परमेश्वर होता हुआ भी उसके रास्ते कठिनाई से भरे हुए थे। आपको उससे नहीं डरना है, लेकिन वचन नहीं तोड़ना है। जब वचन का सामना हो जाए तो वचन आपकी ज़िंदगी बना देना है, बाकी फिर जो हो सो हो, नो प्रॉब्लम। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, आज मैंने जो बताया वो बातें, कि परमेश्वर के लिए जो लोग खड़े हैं वो कभी भी कोई भी अवस्था पार कर सकते हैं, वचन को नहीं तोड़ सकते हैं। आमीन, ध्यान रखना है। वो वचन एकमात्र उनकी ताकत है जो वो और परमेश्वर का एक मिलन हो चुका है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के दाख की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, और उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। यह सेम कंडीशन हमारी हो जाती है। हम बहुत कुछ प्रभु में कर चुके हैं और हाथ कुछ लगता नहीं है ना। तो परमेश्वर और हम अलग नहीं है। जो परमेश्वर की अवस्था यहूदा के बारे में था, वही अवस्था हमारे अपने जीवन के बारे में रहती है। हम बहुत कुछ जी तो लिए प्रभु के लिए, हाथ कुछ लगा नहीं। ओके, मनुष्यों की बुराई 8 वचन से आगे, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। हालेलुया। ये चकाचौंध वाले क्रिश्चियन नहीं बनना है हमको। ओके,
वचनों का मिलन हुआ क्रिश्चियन हमें बनना है। जो वचनों का मिलन हो चुका क्रिश्चियन रहेगा, वो दुनिया की कोई भी बातों के अंदर अपने मन को नहीं लगाएगा। ओके, ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनके पास सब कुछ चकाचौंध का है, लेकिन वचन तोड़ तोड़ कर उन्होंने सब कुछ के बीच में अपना जिंदगी को खड़ा किया है। नहीं, वैसा नहीं जीना है, वैसा नहीं जीना है। ध्यान रखिए इस बात को, हमको वैसा नहीं बनना है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हालेलुया। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस यही कारण मार खा जाते हैं कि वो वचन के साथ समझौता कर लेते हैं और फिर वचन टूट जाता है। उनको जो चाहिए वो आनंद, सब सुख सवलत तो मिल जाती है, लेकिन फिर अधोलोक का मुंह भी खुला रहता है उनके लिए। ओके, फिर हम बोलते हैं ऐसा कैसा हो गया? तो आप वचन क्यों तोड़े? ओके, वचन नहीं तोड़ना है। दानिय्येल ने वचन नहीं तोड़ा, वो शेरों के मांदों में से बचा लिया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दानिय्येल की सुनी और वो आग की भट्टी में से बचा लिए गए, है ना। उन्होंने भी अपनी जिद बना ली कि नहीं, वचन नहीं टूटना है। दानिय्येल ने भी नहीं तोड़ा और दानिय्येल के दोस्त थे वो लोग, तो उन्होंने भी कहा हम भी वचन नहीं तोड़ेंगे। चारों जन जीत गए, है ना। तो वचन टूटना नहीं है। दुनिया घुमा लो, कोई कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वचन का सामना हो जाए तो वचन को ही आप गले लगा लो, दुनिया को छोड़ दो। आमीन। नहीं तो अधोलोक फिर मुंह खोल के बैठ जाता है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। ओके, साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। देखो, पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है, आपको ध्यान रखना है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है। अगर आप वचन की कड़ाई में ही बने रहोगे और जब चकाचौंध को छोड़ देने का अवसर आए तो छोड़ भी देंगे, तो परमेश्वर की ओर से आप ऊंचे किए जाते हैं। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों की को चराई के लिए मिलेंगे। परदेशियों के को चराई के लिए मिलेंगे। देखो ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आत्मिक जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन आप वचन के दायरे में रहोगे तो, वचन के बाहर चले जाओगे और बहुत कुछ प्राप्त करोगे तो नहीं रहेगा कुछ भी आपके लिए। ओके, भूल जाओ फिर। 18 वचन से आगे, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ के रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्सी से खींच ले आते हैं। आप खुद लेकर आते हैं। देखो आप खुद अनर्थ को रस्सियों से और पाप को गाड़ी के रस्से से खींच लाते हैं, क्योंकि आप वचन तोड़ते हैं। तो वचन तोड़ेंगे तो आपने पाप को खींच लिया, अनर्थ को भी खींच लिया। जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। देखा, हमारा इंस्ट्रक्शंस भी चेंज हो जाता है। जब हम वचन तोड़ना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर का उजियाला अंधेरे में बदल जाता है। हमको अंधेरा भी उजियाला लगने लगता है, यानी अंधेरे की बातें भी हमको पसंद आने लगती है। हम सहमत होने लगते हैं। हम बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो इंसान है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो हमारे ही दोस्त है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। माय डियर, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको अंधेरा भला लगने लगा है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुद्धि भटक चुकी है। इसके कारण आप क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वचन तोड़ा। इसके लिए जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। पोल्यूटेड क्रिश्चियंस है ये। ओके, ध्यान रखना, बहुत
डेंजर जोन है। ऐसे पोल्यूटेड क्रिश्चियन की सलाह लेते हो, ऐसे पोल्यूटेड क्रिश्चियन के दोस्ती में रहते हो, खत्म हो जाओगे आप। छोड़ दो ऐसी संगतियों को। पोल्यूटेड क्रिश्चियन से बच के रहो, मुझे ये कहना है। ओके, सिर्फ दुनियादारी के लोगों ही से नहीं, पोल्यूटेड क्रिश्चियंस भी आपके लिए जहरीले हैं। ध्यान रखना ये बात। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। नहीं, मैं वो ज्ञानी और वो बुद्धिमान नहीं हूँ जितना मैं समझती हूँ, वैसे नहीं मैं कह रही हूँ। सिर्फ परमेश्वर का वचन मत तोड़ो, ये तो बुद्धिमान ही कह सकता है, और इसी को ज्ञान भी कहा जाता है। आमीन। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। ओहो, बहुत स्कॉलर समझते हैं वो है। अरे ये लोग, ये तो बस टिड्डियाँ हैं। ओके, ये लोग, अच्छा ये तो क्या है, इनको तो मूर्ख बनाना बहुत आसान है। बहादुर समझते हैं अपने आप को। ओके, और जो भटका देने में माहिर है, जो धोखा देने में माहिर है, झूठ को सच और सच को झूठ बना के दिखाने में माहिर है, हेरा फेरी करने में माहिर है, वो लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। ओके, अच्छा इसको उड़ा देना है, ये बस ये 2 मिनट का खेल है ये। अच्छा इसको गिरा देना है, ये अब भी 2 मिनट में कर देता हूँ। ओके, उसको जाके भटका देना है तो मैं ये अब भी करके आ जाता हूँ। ओके, क्रिश्चियंस भी उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन जितने वो बहादुर समझते हैं। आगे देखिए, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। ओके, दुष्टों के संगति में जो दुष्ट कहेंगे वैसा, अगर दुष्ट लोग कहेंगे जाके उसको ना ऐसा ऐसा बोल के आ जा, वो मसीही है और आके हमको बोलेंगे ये ऐसे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दुष्ट में रहेगा वैसा ही वो हाँ में हाँ मिलाते हुए धर्मियों के विरोध में आके उनको फुसला देते हैं। ओके, ध्यान रखना, क्रिश्चियंस आपको भाई भाई, बहन बहन, रिश्ते रिश्ते ऐसे बोलने वाले मसीही लोग आपको कब छुरा खोप देते हैं आप नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्रिश्चियंस महाभयंकर आपके लिए जहरीले रहते हैं। तो ये क्रिश्चियंस को परमेश्वर कहता है वो प्रभु प्रभु करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा मैं उनको नहीं पहचानता, क्योंकि वचन की कड़ाई में उन्होंने अपने आप को निर्दोष नहीं रखा। ओके, वचन की कड़ाई, वचन की गहराई में हम अपने आप को निष्कलंक, निरुपद्रवी और कबूतर के समान निष्कलंक और निरुपद्रवी रखना है माय डियर फ्रेंड्स, और सर्प के समान चतुर रहना है। वचन नहीं टूटने देना है। वचन जिनके अंदर अभी तक मौजूद है वो चट्टान के ऊपर बंधा हुआ घर है। वचन जिनके अंदर टूट चुका है वह रेत के समान ढह दिया जाने वाला घर है। ओके, उनका ढह जाना बहुत आसान है। वचन उनको स्थिर करेगा, वचन उनका न्याय करेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैं 10 वचनों को अच्छा करता हूँ लेकिन 2-3 धर्मियों को गिरा के आ जाता हूँ, तो फिर वो वचन को रखना नहीं है, आपने धोखा खाया है। आपने अपने आप को अंधेरे को उजियाला समझा है और उजियाले को आप अंधेरे में, आप मिक्सचर पोल्यूटेड क्रिश्चियन चल रहे हैं। आपके लिए आपका विश्वास मूर्खता है। ठीक है, धर्मियों की चाल धर्मियों को बचाती है, धर्मियों की चाल धर्मियों को अधर्म में धकेल कर आने के बाद में फिर विश्वास करने लगेंगे। नहीं, आप मिक्सचर पोल्यूटेड हो चुके हैं। आपको रिपेंटेंस की ज़रूरत है। उन जो धर्मियों को आपने गिराया उनके साथ मेल करने की आपको ज़रूरत है। उनको सच बता देने की ज़रूरत है कि मैंने ये पाप किया और मैं मिक्सचर पोल्यूटेड जीवन जिया और अब मुझे माफ़ी की ज़रूरत है और मैं अब से ये नहीं करूँगा। आपको रिपेंटेंस की ज़रूरत है। ओके, धर्मी होकर आप धर्मियों को गिराने में रास्ते बनाए होंगे, मुश्किल में पड़ोगे आप भटक चुके क्रिश्चियंस हो, पोल्यूटेड है। ओके, आपका कोई भी हिस्सा, कोई काउंसलिंग, कोई वचन का सेवा सही नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। वचन की कड़ाई को पकड़ के रखने वाला मिनिस्ट्री ऊंचा मिनिस्ट्री रहता है।
इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। तो वचन की कड़ाई को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, समझौता कर लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है रूट नहीं है आपके अंदर, आप सिर्फ फसल को खा रहे हैं लेकिन जड़ आप में नहीं है। 25 वचन से आगे, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है। हालेलुया। देखो, यहोवा भी धर्मियों को फटकारता है, ध्यान रखना, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी के छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थकाना नहीं, न कोई ठोकर खाता है। ये है जो वचन की कड़ाई को भी गले लगा देते हैं, जो वचन की कड़ाई के अंदर अपने आप को सीधाई के मार्ग से अलग होने नहीं देते हैं। ये उनके बारे में है। ओके, उनकी जड़ जबरदस्त बनती है और फिर परमेश्वर का एक आवाज भी, वो कितना भी दूर निकल जाए बिना परमेश्वर के, मतलब अपने कामकाज में, अपने व्यवहार में खो जाए, फिर भी एक आवाज परमेश्वर का उनको घुटनों पर ला देता है और उनको उपवास में उतार देता है। उनको तुरंत परमेश्वर के रेवलेशंस आते हैं, तुरंत उनके समझ बुद्धि में आगे क्या करना है मालूम पड़ने लगता है। ये वो कनेक्शन है। अगर आप सीधाई के रास्ते में रहोगे, आप 10 दिन 15 दिन प्रार्थना नहीं किए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वचन नहीं तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के एक मन होकर जी रहे हैं, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में आप आगे परमेश्वर का वचन ध्यान रखते हुए जा रहे हैं, और फिर आपको कभी परमेश्वर बोलेगा चलो आज 10 घंटे बैठकर प्रार्थना करना है, आप तुरंत उसके लिए खुल जाते हैं। तुरंत अगर आपको कहा जाए आज 21 दिन का फास्टिंग लगा देना है, बैठ जाते हैं। अगर परमेश्वर कहेगा आज तुझे पूरे 1 लाख रुपीस दे देना है परमेश्वर के वरदान, जो परमेश्वर के काम है उनके कामों के लिए, आप एकदम झटके से निकाल कर दे देते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्या बहुत आप रोज के रोज प्रार्थना करने वाले इंसान थे, या बहुत कुछ आप परमेश्वर के नजरों में बैठेंगे ऐसे कुछ कर रहे थे? नहीं, वचन की कड़ाई को आपने प्रिय जाना। वचन की कड़ाई के साथ का आपका जो जुड़ाव है वो आपको इंटीमेट बनाता है परमेश्वर के साथ। ओके, वो इंटीमेसी आपको परमेश्वर की आवाज जल्दी से ग्रहण करने के लिए रास्ता देता है। ठीक है, वे गुर्रा कर आहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं और कोई उनसे नहीं छुड़ा सकता। ये है गॉस्पल स्प्रेडिंग। ओके, मैंने बोला ना, मुझे प्रकाशन मिलता है तभी मैं सुसमाचार सुना पाती हूँ, और झटके से वो प्रभु में आ जाता है, क्योंकि वो प्रकाशन से हुआ होता है इसकी वजह से। तो ये वचन देखो क्या कहता है, वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं। ओके, वे गुर्रा कर अहेर को पकड़ लेते, जल्दी से इंसान को प्रभु के रेवलेशन में पकड़ लेते हैं और उसको ले भागते हैं। सीधा पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और कोई उनसे नहीं छुड़ा सकता है। और किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये इंसान हो गया। कल के दिन सुनेंगे क्या हो गया, अरे उसने तो बपतिस्मा ले लिया। ओके, उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। देखा, उनका प्रार्थना वीर होना भी मतलब बनता है, क्योंकि उनके अफेक्ट होते अंधकार के जगत के ऊपर।
इसके लिए मैं आपको बोला अगला रिकॉर्डिंग मेरा सुनिए, क्योंकि मैं आपको कुछ एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आमीन। अब 2 साल का बाइबल रीडिंग में आज क्या है, ल्यूक 23 चैप्टर 44 वर्स से 56 वर्स, 2 सैमुअल 13 चैप्टर 14 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 44 से 56 वचन तक, दूसरा शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय 14 अध्याय। 2 इयर्स 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान हमने अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ना है। जब अब आपको इतना कुछ समझ में आ गया, वचन की कड़ाई आपकी जिंदगी है, इतना गहरा रेवलेशन, इतनी गहरी बात अगर आपके अंदर निकल आई है, आपको समझ में आया है, आपका वो प्रेशियस डायमंड बन जाना चाहिए। डायमंड को ढूंढते मत बैठो, ये मत बनो कि बिकम प्रेशियस डायमंड, नहीं, डायमंड आपके अंदर है, उसको थामे रहो, छोड़ो मत उसके अंदर। वचन आपके अंदर है, उसको पकड़ के रखो, कस के रखो, जाने मत दो उसे, जाने मत दो उसे। ओके, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई डर, कोई लालसाएं, कोई अभिलाषाएं, कोई चिंताएं वचन से आपको दूर करने मत दो। आमीन। यही कारण है आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है। कौन सा वचन है जिससे मुझे दूर नहीं होना है, और क्या क्या है वचनों के अंदर और मुझे फॉलो करना है, और क्या क्या वचन के अंदर है जिसको मैंने फॉलो किया तो था लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। ये परख करने के लिए ही आपको व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में, आपको 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को मैं करने के लिए कह रही हूँ। ओके, पर्सनल टाइम में पढ़िए ताकि आपको अपनी परख करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर नया रेवलेशन, नया वचन का जगह आएगा। पुराने वचन जो आपने छोड़ दिए होंगे आपको याद दिलाए जाएंगे, और आप आगे बढ़ने में संभव परमेश्वर की इंटीमेट पावर को आपके अंदर स्रोत होकर बहते रहने में कामयाब रहोगे। ओके, 2 साल के अंत में देखेंगे आप, परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा इंसान वचन का इंटीमेट पावर में भरा हुआ इंसान होकर आप आओगे। आमीन। ओ रबखसिया खुबरखसा, ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है। वो प्यारा परमेश्वर है, कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता है। वो आपको अपनी ओर से ताकत देता है, अनुग्रह का आत्मा, ताकि आप वो इंटीमेट एरिया ऑफ लाइफ जो वचन है आप उसको ले सके अपने अंदर। ओके, और ऐसा अनुग्रह का आत्मा निश्चित हमने अनुभव अपने जीवन में उसका लाभ उठाना है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर, हम आपसे पिता विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, और हमें व्यवस्थित कर, ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। मैं तुझसे विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।